حضور سے کرتا ہو کہ وہ اتنی محبت اپنے بچوں سے بھی نہیں کرتے، جتنی محبت حضور سے حضرت عبد المطلب کرتے تھے اتنی محبت وہ اپنے بچوں سے بھی نہ کرتے تھے۔ کعبہ میں ایک جگہ مختص تھی، اس جگہ میں صرف حضور تشریف رکھتے تھے، اور اس جگہ پر اپنے بیٹے کو بھی وہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اور کوئی بیٹا اتنی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت عبد المطلب کے قریب کعبہ کے صحن میں جو ٹیک لگا کر بیٹھتے، کوئی بیٹا اس قریب میں نہیں جاتا تھا۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اتنا نرالا کہ 4 سال کی عمر شریف ہے، بلا خوف و خطر اس جگہ جا کر کے تشریف فرما ہوتے۔ حضرت عبد المطلب کہتے کہ جو شرف والا ہے اپنا شرف کو پہچان، اپنے مرتبے کو پہچانتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا دن نہ گزرا کہ جس دن حضرت عبد المطلب کھانا کھایا ہو اور حضور اس دسترخوان میں نہ ہو، بلکہ وہ کہتے کہ حضرت عبد المطلب یہ کہتے تھے میرا یہ پوتا برکتوں کا گہوارہ ہے، جب تک یہ تشریف نہ لائیں ہم کھانا شروع نہیں کر سکتے۔ اور یہ سلسلہ جاری بھی رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی، 6 سال کی عمر شریف میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی والدہ نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ایک مرتبہ جو مدینہ المنورہ ہے وہاں پر جاؤں، جہاں پر میرا شوہر زندگی کی جہاں پر آخری سانس لی ہے، جہاں ان کی قبر مبارک ہے، تاکہ میں وہاں کا سفر اختیار کر سکوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر کے ان کے جگہ پر زیارت کر کے پھر لوٹ کر آؤں۔ حضرت عبد المطلب نے حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت آمنہ کو اجازت دی، اور ام ایمن کو ساتھ میں دیا۔ یہ تینوں قافلہ چلا، چلتے چلتے جب مدینہ شریف پہنچے، مقام ابوا پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خود ناساز ہو گئی۔ آپ جب اتنی ناساز ہوئی کہ آپ کی طبیعت میں اب امید نہ رہی زندگی کی کہ آپ جو ہے زندہ بچ کر مکہ جا سکتی ہے، تو آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بلایا۔ حضرت آمنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے دست مبارک کو پکڑ کے ارشاد فرمایا، اے میرا بیٹا تم غم نہ کرنا، اگرچہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں مگر تم یاد رکھنا، مجھے یقین ہے کہ میں نے ایسا بیٹا پیدا کیا ہے، ایسے بیٹے کو میں نے چنا ہے کہ رہتی دنیا تک، یعنی جب تک سورج اور چاند رہے گا میرے بیٹے کا نام روشن رہے گا۔ کیونکہ اے میرا بیٹا جب تو دنیا میں آیا تھا تو ایسا نور نکلا تھا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اے میرا بیٹا میں جدائی کا وقت قریب ہے، ہر نئی چیز کو پرانی ہونی ہے، جو بھی دنیا میں آتا ہے اے میرا بیٹا اسے جانا ہوتا ہے، تم غم نہ کرنا، اے ام ایمن میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر حضرت آمنہ کا، حضور کی عمر 6 سال ہوتی ہے، حضرت آمنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم تھے، یعنی جب اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ حضور کا 6 سال ہوا، ادھر حضرت آمنہ انتقال فرما جاتی ہے، یعنی پہلے آپ یتیم تھے، اب آپ در یتیم ہو گئے، گہرے نایاب ہو گئے، کیونکہ اللہ عز و جل کی یہ مصلحت تھی کہ ظاہری طور پر کوئی میرے نبی کی پرورش نہ کرے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب کائنات تیرا نبی تو یتیم ہو گیا، تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا، اب اس کا کون پرسان حال ہے؟ تو اللہ نے آواز دیا، ارشاد فرمایا، اے فرشتوں وہ میرا محبوب ہے، اس کا حامی اور مددگار صرف اور صرف میں ہی ہوں، تم میرے کرشمے کو دیکھتے چلے جاؤ۔ دوستو حضرت آمنہ نے جو وصیت کی تھی، جو جملہ وقت وصال آپ نے فرمایا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس کا ذکر فرماتے تھے، اپنی ماں کی وصال کا بھی ذکر فرماتے تھے، ان کے کلموں کا بھی ذکر فرماتے تھے، اور جب بھی اپنی ماں کا ذکر فرماتے اور وقت جدائی کا ذکر فرماتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک
आंखों मुबारक से, आंखों से, चश्मान मुबारक से आंसू बह निकलते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ाहिरी तौर पर हज़रत आमना का इस दुनिया से पर्दा फरमाना हो जाता है। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंचती है। फिर 8 साल की उम्र, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 8 साल की होती है, फिर एक गम का पहाड़ टूट पड़ता है कि वो दादा जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को जान से ज़्यादा प्यार करते थे, उनका भी 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है, विसाल फरमा जाते हैं। गोया कि आप पर एक और गम का जो है पहाड़ टूट पड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मरते वक्त इस दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अबू तालिब को बुलाकर कहा कि इनका हर हाल में ख्याल रखना, जैसा मैंने इनका ख्याल रखा था। ऐ बेटा, तुम्हें भी इनका ख्याल रखना है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी वो चाचा का हक अदा किया कि दुनिया का कौन ऐसा चाचा है जो इतना हक अदा कर सकता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर 8 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़ेरे किफ़ालत हुजूर तशरीफ़ लेकर के आए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्या करते थे, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि क्योंकि आप कसीरुल अयाल थे, यानी आप के बाल बच्चे कसरत के साथ थे और तंगदस्ती का आलम था। जब कोई खाना आप तनावुल फरमाते बाल बच्चों के साथ, तो खाना कम पड़ जाता और किसी का पेट भरता नहीं, सैर होकर नहीं खाता, शिकम सैर ना होता था। मगर उन्होंने ये आजमाया कि जब उस दस्तरखान में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा होते और खाने की इब्तिदा हुजूर से करते, तो सभी के सब शिकम सैर हो जाते थे, सब पेट भरकर खाते और जितना खाना होता उतना खाना बची था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बरकते मुस्तफ़ा। कर हजरत अबू तालिब और इंतहाई मुतासिर हो जाते हैं और कहते हैं उस वक्त तक हम खाना नहीं खा सकते जब तक कि मेरा भतीजा जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान में तशरीफ ना लाते। यहाँ तक कि अगर कोई दूध का प्याला पेश होता तो वो दूध का प्याला उस वक्त तक हजरत अबू तालिब भी अपने मुंह को नहीं लगाते, अपने बेटे को भी मुंह लगाने नहीं देते जब तक कि मेरे आका के लम्हाए मुबारक उस दूध के प्याले में न लग जाता था। उनके बाद हजरत अबू तालिब उस दूध को नोश फरमाते, फिर तमाम उनके जो बच्चे हैं उसको नोश फरमाते थे। कैद साली का सामान आ गया, मक्का के लोग प्यास की शिद्दत से, भूख की शिद्दत से मरे जा रहे हैं और आलम ये हुआ कि तमाम अहले मक्का ने ये मशवरा किया कि क्यों ना हम जो 360 बुत है काबातुल्लाह के अंदर, उससे जो बड़ा बुत है, जो हुबुल है, जो हमारा खुदा है, क्यों ना हम उससे जाकर के कैद साली की भीख मांग ले। तमाम लोग मशवरा करते हुए ये तमन्ना करते हैं, चलो उस बुत के पास जाकर के अपनी तमन्ना करते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं कि हम कैद साली में मुब्तला है, हम तो मरे जा रहे हैं। मगर एक बुरा शख्स खड़ा हुआ, कहा कि सुनो सुनो, तुम कैसी नादानी की बातें कर रहे हो, क्या तुम में बनु इस्माइल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद नहीं है? कहा कि आपकी मुराद क्या है? कहा कि मेरी मुराद यह है कि तुम में हजरत अबू तालिब मौजूद है। तुम ऐसा करो कि हजरत अबू तालिब के पास जाओ और उनसे कहो कि वो दुआ करे काबा में आकर के, उनकी दुआ यकीनन कबूल होगी। तमाम अहले मक्का हजरत अबू तालिब के घर पहुंचते हैं, हजरत अबू तालिब के दरवाजे को खटखटाते हैं। क्या देखते हैं कि हजरत अबू तालिब जब दरवाज़ा खोलते हैं तो आपके साथ जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक छोटा सा बच्चा भी है जो उंगली मुबारक पकड़े हुए हैं और उंगली पकड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि अंधेरी रात से चाँद चौदहवीं का चांद बाहर निकल के आया, पूरा घर चमकता तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादे मुस्तफ़ा, गुलशने नईमिया कमेटी, नारे तकबीर। लोगों ने अपना अरीजा पेश किया कि आप ऐसा करें, आप हमें कहत साली से नजात दिलाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू तालिब ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ा और काबातुल्लाह का तवाफ करने के बाद वहां पर बैठ करके
ये दुआ करने लगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगलियों के इशारे से यानी आसमान के तरफ वो अपने उंगली मुबारक को आसमान की जानिब करते हैं और इशारा फरमाते हैं। लोगों का ये बयान है कि उस वक्त कोई बादल भी नमूदार ना था और उस वक्त में ऐसा ना लगता था कि घटाएं छा रही हो, बादल गरज रहा हो, मगर हमने देखा जिस तरफ नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा उंगली के तरफ आसमान के तरफ गुजर रहा है, अचानक वहां से बादल गरजना हुआ और रहमतों का पारान रहमत का नुज़ुल होना शुरू। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को हजरत अबू तालिब ने एक शेर में अर्ज किया है कि यस्तस्कल गमामु बेवजहिही, कि ये वो मेरा भतीजा है, यानी वो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनके चेहरे की बरकत से अगर पानी तलब किया जाए तो अल्लाह पानी को नाज़िल फरमा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जो यतीमों को परवरिश करने वाला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 12 साल की हुई, 12 साल की उम्र शरीफ में मुल्क शाम का सफर हजरत अबू तालिब ने इरादा किया कि मैं मुल्क शाम का सफर करूं तिजारत की गरज से। अब वो काफिला पूरे ऊंटों के साथ, लश्कर के साथ तिजारत, पहले जमाने में लोग, अरब के लोग कभी मुल्क शाम जाते, कभी यमन जाते, कभी बसरा जाते, दिगर मुल्कों में जाकर के वहाँ पर माले तिजारत बेचते थे और काफ़ी उन्हें नफ़ा हासिल होता था। हज़रत अबू तालिब ने ये सफ़र का इरादा किया। एक रवायत में है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के हाथ को पकड़ लिया और इरशाद फरमाया कि चचा, क्या आप मुझे साथ में नहीं ले जाना चाहते हैं? आप मुझे किसके सहारे छोड़ना चाहते हैं? मेरा तो बाप भी नहीं है, मेरी तो माँ भी नहीं है, आप मुझे साथ में लेकर के चले। हजरत अबू तालिब ने कहा, ए मेरा लख्त जिगर, ए मेरा बेटा, ए मेरे भतीजे, यकीनन मैं आपको साथ में लेकर के चलूंगा। ये काफिला जब मक्का से निकला, चलते चलते जब बसरा के करीब पहुंचा, बसरा में वहां पर दोपहर का वक्त ये काफिला वहां पर पहुंचता है। बड़ी तेज धूप। उस बसरा के करीब जो एक कलीसा था, गिरजाघर, उसका जो राहिब था वो हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नस्ल दर नस्ल से, वो उसकी नस्लों से था, उनकी उम्मतों से, और वो आसमानी किताबों का माहिर था और आमिल और आलिम था। बहुत बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतों को जानता था, बेशक यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतों, कुदरतों, करिश्मा को, कि जो आखिरी नबी होंगे वो इस तरह से चलेंगे, उनकी ये सिफतें होगी, उनके अंदाज ऐसे होंगे, उनकी सिफतें ऐसी होगी, उनका बोलना ऐसा होगा। उन्होंने क्या किया, वो राहिब ने छत पर चढ़कर, हमेशा उसकी आदत रहती थी, जब भी कोई काफिला गुजरता था उस काफिले को देखा करता था। उन्होंने क्या देखा कि काफिला आ रहा है और उस काफिले में उन्होंने महसूस किया कि बड़ी तेज धूप है और उस धूप की शिद्दत में लोग बहुत परेशान हाल है। चलते चलते वो बुहेरा राहिब ने देखा, जिसका नाम बाज लोगों ने बुहेरा कहा, बाज ने बहीरा कहा। उसने ये देखा कि जब वो काफिला करीब पहुंचा तो उसमें एक 12 साल का बच्चा भी तकरीबन, लेकिन इस धूप की शिद्दत में उस बच्चे का यह आलम है कि जिधर जिधर से गुजर रहा है बादल का एक टुकड़ा उसे साया किया हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहीरा राहिब इस करिश्मे को देख रहा है, खुदा की इस कुदरत को देख रहा है कि एक बादल उसको साया किया जा रहा है। जिधर वो बच्चा जा रहा है वो बादल उसी के तरफ जा रहा है। यहाँ तक कि एक दरख्त जो उस कलीसा के करीब, उस राहिब के गिरजा घर के करीब था, तमाम लोग जो कि धूप से परेशान थे, वो दरख्त के करीब जाकर के जहाँ पर पत्ते झुके हुए थे अपने अपने साया को महफूज कर लिया। भाई हर आदमी चाहता है कि इतनी धूप की शिद्दत है तो क्यों ना मैं सायादार, जहाँ साया है दरख्त का, जहाँ टहनियाँ झुकी हुई है, क्यों ना पहले मैं उसको महफूज कर लूं। सभी लोग, जितने काफिले के लोग थे, सभी लोग ने अपने साया को महफूज कर लिया। अब आलम क्या हुआ कि वो जो टहनियाँ थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन शाखों के नीचे, उन दरख्तों के टहनियों के नीचे हुजूर को जगह नहीं मिली।
धूप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए बैठ गए। इधर उस बहिरा राहिब ने क्या देखा कि वो जो दरख्त था उसकी टहनियां हुजूर की तरफ झुक गई। वाह वाह सुभान अल्लाह। उन लोगों को छोड़कर उन काफले वालों को वो टहनियां हुजूर की तरफ झुक गई और वो जो साया था वो दरख्त हुजूर के तरफ साया बनकर रह गया। इधर बहिरा राहिब ने जब इस सिफत को देखा, क्योंकि वो पढ़ चुका था तौरेत में कि नबी जो आखिर समा होंगे उनकी यह सिफत होगी कि जिस तरफ हुजूर तशरीफ फरमा होंगे, अगर धूप होगी तो तरफ अपना चेहरा हुजूर के तरफ कर लेंगे, यानी साया कर लेंगे। तो फौरन अपने गिरजाघर से नीचे आया और उन काफला वालों से कहा कि ए काफला वालों, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ। मेरा इरादा आज ये है कि मैं तुम्हें दावत देता हूँ। और इस काफले का सबसे सरबराह कौन है? लोगों ने कहा हजरत अबू तालिब है। हजरत अबू तालिब ने कहा हमें तुम्हारी दावत कबूल है, मगर ये तो बता ऐ बहिरा राहिब, हमने इससे कबल कई काफले यहाँ से हमने गुजर हुआ है, मगर तुमने कभी हमें मिलने तक नहीं आया, कभी हमारी दावत नहीं की, मगर ये कैसा मामला है? अचानक तुमने ये ऐसा हमें दावत पेश की है। तो बहिरा राहिब ने कहा कि बस दिल की बात है, मैंने आपको दावत की है। आज सब हमारे लिए मेहमान है, मैं आपका मेजबान हूँ। उसने दावत को कबूल किया। सब काफले वालों ने उन्हें दावत का एहतमाम किया। इधर तमाम काफले वाले जब उस गिरजाघर में खाने के लिए पहुंचे, मेहमान के लिए पहुंचे, असल तो मकसद ये था कि वो हुजूर की दावत करनी थी और हुजूर के सदक़े में सब काफले वालों की दावत करनी थी। मगर इन काफले वालों ने क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह छोड़ दिया। कहा कि एक बच्चा है, आप यहीं पे रह जाएं, हम खा करके आते हैं, आप ऊँटों की तरफ देखभाल करते रहे। धूप की शिद्दत भी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल मासूमीन है, तमाम मासूमों का सरदार है, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जलवा फरमा हुए, वो राहिब जब खाना बांटने लगा तो एक एक करके सबके चेहरे को देखने लगा कि इसमें से कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर जब उसने देखा इसमें से कोई शख्स नहीं है, तो हजरत अबू तालिब से कहा कि मैंने सबकी दावत की थी, क्या कोई शख्स वहाँ मौजूद है? कहा नहीं, सभी लोग आ गए हैं, मगर हाँ एक बच्चा है, उनको हमने ऐसे ही छोड़ के आया है। कहा नहीं, कोई बाकी नहीं रहना चाहिए, मेरी तमन्ना है कि सब हाजिर हो जाए। कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू तालिब ने बुला भेजा। कहा हजरत अबू तालिब से बहिरा राहिब ने कि ये बताइए कि ये आपका कौन है? कहा कि ये मेरा बेटा है। कहा नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता है। कहा ये मेरा भतीजा है। अच्छा, ये हो सकता है। कहा कि इनका जो वालिद गिरामी है, ये दुनिया में आने से पहले उनका विसाल हो चुका है, इनकी वालिदा का 6 साल की उम्र में विसाल हो चुका है, और मैं इनका चचा हजरत अबू तालिब हूँ। इनकी सिफतों को पूछकर बहिरा राहिब ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना तनाउल फरमाते हुए देखा। हुजूर तो खाना तनाउल फरमा रहे थे, मगर बहिरा राहिब हुजूर के चेहरे की जियारत कर रहे थे, बार बार जियारत कर रहे थे। लोगों का तवज्जो इस तरफ हुआ, क्या है बहिरा राहिब, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी तवज्जो मुकम्मल तौर से इस बच्चे की तरफ है, इसमें क्या खास बात है? बहिरा राहिब ने कहा वो तुम्हें पता ना चलेगा कि मैंने जो ये दावत की है, असल में हुजूर के सदक़े में ही सबकी दावत की है। अल्लाह अकबर कबीरा। बहिरा राहिब ने क्या किया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप कौन हैं? मैं लात और उज़्ज़ा की कसम देकर कहता हूँ कि आप कौन हैं? बहिरा राहिब ने कहा कि मुझे नफरत है उस लात और उज़्ज़ा से, मुझे आप उसकी कसम ना दिलाएं। जमीन और आसमान ने अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से मुझे नफरत है तो लात और उज़्ज़ा है। बहिरा राहिब ने कहा ये पहली अलामत थी जो मैंने पहचान लिया। फिर मैंने आपसे कहा कि मैं अल्लाह का सवाल अल्लाह के वास्ते, नस्अलुका अल्लाह, मैं अल्लाह के वास्ते से आपसे सवाल करता हूँ, ये बताएं कि आप कौन हैं? हुजूर ने शायद फरमाया अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। हुजूर ने फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ, हाशमी हूँ, कुरैशी हूँ, और मैं बनु हाशिम का चश्मो चिराग हूँ। फिर बहिरा राहिब ने
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीज मुबारक को उठाया पीछे से और दोनों कांधों के दरमियान एक अलामत थी खत्म नबूवत की, यानी हुजूर के बाद अब कयामत तक कोई नबी तशरीफ नहीं ला सकता है। अल्लाह ने मोहर मारकर हुजूर को भेजा था। दोनों कांधों के दरमियान वो मोहर नबूवत जिसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और बाल का गुच्छा था। जब बहिया राहिब ने इस अलामत को देखा तो चूम लिया, बोसा दिया और कहा कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह रहना कि एक ऐसा जमाना आएगा कि आप जो है आप नबूवत का ऐलान करना है और लोग आप पे दुश्मन हो जाएंगे, अहले मक्का आपके मुखालिफ हो जाएंगे। लेकिन ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले मैं आप पर ईमान लाता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सबसे पहला राहिब है जिसने तौरात को पढ़कर नबी के बचपने में 12 साल की उम्र में हुजूर की गुलामी में दाखिल हुए और गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पट्टा है अपने गले में डाला। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। फिर उन्होंने कहा हजरत अबू तालिब से मुखातिब होकर के, ऐ अबू तालिब, मैं आपसे खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ कि सुनो, यहीं पर तुम अपना माल तिजारत बेच दो, इसलिए कि अगर ये मुल्क शाम गए, मुल्क शाम अगर चले गए तो जो यहूदी है वो इस तलाश में है कि नबी आखिर से जमा होंगे, उनकी ये सिफतें होगी। अगर उन्होंने इस बच्चे को देख लिया यानी नबी आखिर जमा को देख लिया तो इनको तकलीफ पहुंचाएंगे, इनके कत्ल पर आमादा हो जाएंगे, नबी के यहूदी दुश्मन है। लिहाजा है अबू तालिब, वास्ते अल्लाह के आप यहीं से मक्का पहुंच जाएं। हजरत अबू तालिब कहते हैं हमने वहीं पर बसरा में ही सारा माल तिजारत जो सामान था बेच दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार हमें नफा अता फरमाया। फिर हम मक्का के तरफ रवा और दवा हुए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको प्यारे नबी सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन मुबारक की बरकतों से, हुजूर की अदाओं से हमें मुस्तफ़ीज़ अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हुजूर के बचपने के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला, हमें ज़ियारत हरमैन शरीफ इनकी, अपने हबीब की घर की ज़ियारत और सैयदा हलीमा सादिया के घर की ज़ियारत, तमाम बुजुर्ग तबर्रुकात की ज़ियारत की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल अता फरमाए। गुलशन नईमिया कमेटी के